You told your parents कि mama, I want to start a company. How was their reaction like? So very frankly, मैंने ये चीज बताया ही नहीं था अपने पेरेंट्स को. तो आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ देख कर लिया, तो प्रपोजल्स तो बहुत आए होंगे लड़कियों के. एक बहुत ही फेमस सा कोट है, इट्स नॉट अबाउट आइडियाज, इट्स अबाउट मेकिंग देम हैपन. हे गाइस, आई एम पारस, वेलकम टू द शो एंड दिस विल बी अ पॉडकास्ट सीरीज जहाँ पे हम कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे who are courageous enough to make some big decisions in life and who are actually doing something different. So आज इस पहले एपिसोड में हम जिसको बुलाने वाले हैं, सच बता रहा हूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू हिम. एंड उससे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस कर दूँ, मैं उनको कनेक्ट कर लेता हूँ. तो टुडे वी हैव हर्षिल आनंद विद अस. सो हर्षिल, पहले मैं आपके बारे में बता देता हूँ कि मैं आपके बारे में क्या क्या जानता हूँ. उसके बाद आप बताना इफ आई मिस समथिंग. Sure. So Harshil started his career at the age of 14 when a child is almost in 6th or 7th class playing video games. He started his own blog known as Techotize at the age of 14. He started his freelancing career at the age of 15 to become independent, to collect money for his projects. Also, he started YCube, a company in 11th class which provided chatbot services. Recently, he also made Smart Tea, a health monitoring t-shirt जिसमें सारा data cloud पे save हो जाता है. Now, he's working on SidePart, an alternative education platform for students. Plus, Harshil had also been featured in various newspapers, blogs, Radio Mirchi and whatnot. So Harshil, इतनी छोटी सी उम्र में how do you have achieved so much things? And guys, he's just 17, right? He's just 17. तो हर्षिल कैसे अचीव कर लिया इतनी छोटी सी उम्र में ये सब? See, basically it was not all about achieving की मतलब ऐसे सोचा तो नहीं था कि मतलब it was not an intention कि कुछ मतलब ऐसा करना है. But basically I was just like starting out with like what gave me happiness. Like I started with robotics back in class 8. So I मतलब कुछ मेरा ऐसा intention नहीं था कि I was basically gonna do this form a company or एक like this is a very like honest thing from my side कि I never thought of doing a startup by the time when I was in class 10th. 11th में मैंने अपनी like co-founder से मिला रोहित बिहारी. So इसके साथ हमने फिर YCube स्टार्ट किया. तो 10th तक मेरा ड्रीम जॉब हुआ करता था. I had a dream कि getting a job in Google. So this was basically my dream और वो अचानक से transition हुआ and that's also मतलब काफी मतलब एक like it's a total journey. मतलब ऐसा नहीं बोला कि अचानक से एक दिन में transition हो जाता. I was just not confident much about कि मतलब basically मुझे startup करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. I was basically hearing a lot of things from my surroundings. I started networking at a very early age. तो उनके से मैं सुनते रहता था मतलब मेरे को जो entrepreneurship का dark side होता है ना, वो मेरे को काफी ज्यादा पहले ही पता चल गया था. यूजुअली लोग इसको लेट से रियलाइज करते हैं. लोग जस्ट सोचते हैं कि भाई entrepreneurship is just a glamorous thing to say. Yes, these movies like Social Network have glamorized it so much, like it feels like ये तो बहुत आसान है and it's a smooth journey. Exactly. But the reality is ये तो बहुत difficult journey है and you have to face a lot of difficulties. रोड आप टूटते हो अंदर से, रोज बहुत कुछ नया होता है. आपकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड हो जाती है. Exactly. There will be times कि आप जब अकेले बैठ के किसी रूम में रोते रहोगे. Like personally मेरे साथ काफी ज्यादा मतलब बहुत बार हुआ like you just get frustrated. आप काफी ज्यादा रोगे, समझ में नहीं आया कि इसके बाद आपने करना क्या है. Then ultimately कुछ ना कुछ solution फिर निकल जाता है. But because like when you are easily वो बोला जाता है ना एक line है कि don't start a company or don't do a startup for the sake of doing a startup. अगर आप ऐसा करते हो when you are not passionate about solving a particular problem, this startup ecosystem is gonna hit you back so hard कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप बर्बाद हो सकते हो basically. ये इतना hard है, ये बिल्कुल भी मतलब ग्लैमरस थिंग वो बिल्कुल भी नहीं है. आप बेसिकली जब कोई बंदा इसके अंदर डीप डाइव करेगा तब जाके उसका समझ में आता है बेसिकली मतलब स्टार्टअप होता क्या है और यहाँ पर चीजें कैसे काम करती हैं. When you told your parents in 11th class you want to start up a company, how was their reaction? Like when you told them कि मम्मा मेरे को 11th class में जेई की तैयारी नहीं करनी. Like मैं अपने एंड पे बताता हूँ कि
मेरे एंड पे एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ क्या थी कि मेरे एंड पे मेरा ड्रीम था कि मैं जेई में जाऊं, वहां पे एक बंदी सेट करो, आराम से जिंदगी, गूगल में जॉब लूंगा और मस्त जिंदगी सेटल, ठीक है। एंड यू डिड समथिंग दैट वाज यूनिक, दैट वाज एंटायरली यूनिक। व्हाट यू डिड वाज कि तूने 11th क्लास में यू टोल्ड योर पेरेंट्स कि मम्मा आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी। हाउ वाज द रिएक्शन लाइक व्हेन यू फर्स्ट टोल्ड देम कि हाँ यार मम्मा एक कंपनी शुरू करनी है, पापा एक कंपनी शुरू करनी है, तो व्हाट डिड दे से? ओके, सो वेरी फ्रैंकली मैंने ये चीज बताया ही नहीं था अपने पेरेंट्स को। मेरे स्टार्टअप करने के पहले मेरे मतलब स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन होने के 6 महीने 1 साल तक अपना स्टार्टअप रन किया था बिना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए। और आई गेस वी गॉट इट रजिस्टर्ड लास्ट ईयर इन नवंबर, अक्टूबर और नवंबर समथिंग। तो उनको तब तक नहीं पता चला कि लाइक आई वाज बेसिकली गोइंग अ स्टार्टअप जब तक मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। मैं बेसिकली मैं बताता भी नहीं था, मतलब बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी भी होती थी जो बेसिकली शेयर नहीं करता था मैं। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस मतलब अगर आप बताने भी जाते हो अपने पेरेंट्स से कुछ मतलब आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू डू जस्ट लाइक, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस प्रायोरिटाइज करता हूँ कि डोंट टेल योर पेरेंट्स समथिंग व्हेन जब तक तुमने उस फील्ड में उस डोमेन में कुछ अचीव नहीं कर लिया उस पर्टिकुलर रिजल्ट्स तक। दैट्स व्हाई आई एम फ्रैंकली सेइंग कि हाँ अभी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम सब अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। जब दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, दैट्स व्हाट यू डिड। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एक्चुअली प्रेफर। मैंने शुरू में बताया नहीं था कि मैं क्या क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे जैसे मैंने थोड़ी चीजें अचीव करना स्टार्ट की, पेपर वगैरह में नाम आना स्टार्ट हुआ, लाइक मम्मी पापा को देखने थोड़ा वो मिलता गया कि मतलब हाँ he's doing something great, and then we realize that हाँ basically मतलब सही काम कर रहा है, and like they just मतलब became more and more confident upon me, मतलब हाँ ठीक है कर सकता है। So that's what I actually मतलब say to all the students who are like looking this video, मतलब if you even want to drop out of your college or if you want to drop out of your school, first इतने reliable बन जाओ, even if that's your skill, उसको खुद को इतना upskill कर लो, उस level तक पहुंचा लो, you can just become self-reliable, right? ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब आज ड्रॉप आउट कर दिया, कल भी जाके बेसिकली मतलब अब कुछ करने को है नहीं, ना स्किल है तुम्हारे पास, अब कैसे पैसा कमाओगे। सो दैट्स नॉट अ यूजुअल थिंग। मार्क ज़करबर्ग ये सब को फॉलो मत करो, दैट्स बेसिकली अ टोटल हाइप। उन्होंने बेसिकली मतलब किया था, डेफिनेटली किया था, बट दे वर हैविंग वेरी गुड स्किल्स, दे वर फ्रॉम हार्वर्ड ड्रॉपआउट्स टू बी वेरी फ्रैंक। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी से जो मतलब मैं अभी तक सीख पाया हूँ आपसे और खुद से भी, खुद की जर्नी में भी, कि हर किसी की जर्नी यूनिक होती है। तो हर्षल 11th 12th में मेरा क्या प्रोसीजर था कि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई। उसके बाद मैं जेई की प्रिपरेशन की, तो उसके बाद आई लैंडेड अप इन कॉलेज। सो डिडंट यू थॉट कि मैं जेई की प्रिपरेशन कर लूं, और ये सब इतनी मेहनत करने की बजाय कंपनी में इतनी मेहनत शुरू करने में इतनी मेहनत लगती है, तो उसको करने की जगह जेई की प्रिपरेशन कर लूं और बाकी लोग जैसे फ्रेंड्स, मतलब देयर मस्ट बी योर फ्रेंड्स दैट मस्ट बी डूइंग प्रिपरेशन ऑफ जेई, तो डोंट यू थिंक कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ जेई की इंस्टेड ऑफ दिस स्टार्टिंग दिस कंपनी? हाउ ये आसमान को छूने के सपने आए कैसे? बेसिकली और हैपन कि मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मतलब मेरे दिमाग में कभी ऐसा थॉट आया या मुझे आई शुड प्रिपेयर जेई और समथिंग दैट्स, हाँ मेरे दिमाग में होता है यूजुअली। मतलब 10th तक जितने जैसे सभी बच्चे होते हैं वैसे मैं भी कभी मतलब जेई करना है, मेरे को टॉप ऑफिस वगैरह में जाना है, गूगल में जॉब लेना है, तो मेरा माइंडसेट ऐसे ही था। बट बेसिकली आई मेड अ ट्रांजिशन जब मेरे को एजुकेशनल डोमेन के बारे में और ज्यादा डीपली पता चलता गया। मेरे को पहले कुछ नहीं पता था कि ये सब जो कॉलेजेस वगैरह होती हैं इनकी सच्चाई वगैरह क्या होती है। जब मैं, और स्पेशली मैं बोल सकता हूँ कि मैं तब जाके 100% कॉन्फिडेंट हो गया जब मैं टेक इंडस्ट्री में घुसा, मतलब लाइक 6-7 months बैक व्हेन वी एक्चुअली लॉन्च साइटबग। जब मैं इस इंडस्ट्री में घुसा तब मेरे को मतलब काफी ज्यादा मैंने इस पे रिसर्च किया, काफी ज्यादा केस स्टडीज वगैरह पढ़ी है कि क्या होता है। देन उसके बाद मतलब लाइक 80% ऑफ द इंजीनियर्स इन इंडिया रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। मैंने इस चीज पे काफी ज्यादा, इस स्टेटमेंट पे काफी ज्यादा मतलब रिसर्च किया कि मतलब क्यों होता है। लाइक आई अल्टीमेटली केम टू अ conclusion कि there are primarily 2 reasons for this. One is कि you are currently in college, so you might be very well aware of this कि like the college curriculum is totally outdated. जो मॉडर्न कंपनीज वगैरह हो, और लाइक मैं यूजुअली मतलब मैं खुद भी देखता हूँ, लाइक वी यूजुअली हायर इंटर्न्स फ्रॉम, लाइक मैं इंटर्नशाला वगैरह पे एप्लीकेशंस पोस्ट करते रहता हूँ, वहाँ पे जितने भी इंटर्न्स वगैरह अप्लाई करते हैं मैं यूजुअली उनका देखता हूँ। मैंने काफी सारे कॉलेज वालों से बात भी किया है, यूजुअली टेल कि मतलब हमें कॉलेजेस में तो ये सब सारी चीजें सिखाई ही नहीं गई, मतलब द स्किल्स। That's the perfect thing. हाँ, that's the perfect thing. Like
आई पर्सनली प्रेफर कि कॉलेज में जो एजुकेशन है हमारे आज भी वो पुरानी है एंड करंट इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड बहुत नए हैं। हमारे हिसाब से कॉलेज में सिर्फ रोल्स आते हैं किसी 2-3 चीजों के, और उसके लिए भी दे कंपल्सरी लाइक आई एम इन सेकंड ईयर मेरा ग्रेजुएट हुआ है, तो उसके बाद भी व्हाट आई प्रेफर इज कि जो मैं कॉलेज देखता हूँ कि पीपल थर्ड सेकंड ईयर के अभी जैसे हमारा वो चल रहा है समर, तो पीपल मोस्ट प्रेफर कि मैं डीएसए कर लूँ इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ न्यू स्किल एंड मेकिंग देम मोर रिलायबल, कि आप इंडस्ट्री में डिपेंड ना हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि डीएसए कर रहे हैं, कॉलेज की जॉब चाहिए सर, प्लेसमेंट चाहिए, सीजी के पीछे भाग रहे हैं। और दूसरा जो बेसिकली मेरा खुद का है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सबके लिए, बेसिकली वो मेरे खुद का प्रेफरेंस था कि मेरे को मेरे दिमाग में कौन कौन से थॉट्स आते हैं, मैं उन चीजों को बहुत कंट्रोल करना पसंद करता हूँ। सो आई यूजुअली प्रेफर कि मैं कौन सा मूवी देख रहा हूँ, मैं डिसाइड करूंगा, मैं यूजुअली कोई मूवी नहीं देखता। सो मेरे को कॉलेज सराउंडिंग ही पसंद नहीं था। मैंने 12th तक इस चीज को झेला है। मैं स्कूल लाइफ से भी बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। मेरे को स्कूल जाना ही पसंद नहीं था। आई रिमेंबर मेरा अटेंडेंस 42% था अभी 12th क्लास में, तो मतलब आई वाज थैंकफुल टू माय क्लास टीचर। वो 9th क्लास में मेरी क्लास टीचर थी, तो आई वाज थैंकफुल टू कि उन्होंने मैनेज कर दिया मेरा अटेंडेंस वगैरह सारा कुछ। So, सब तो चलो टेक्निकल पार्ट पे हो गया। लाइक मैं मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि मतलब इतना कुछ इतनी छोटी सी उम्र में, यू आर जस्ट 17 राइट, तो आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया, तो प्रपोजल्स तो बहुत आए होंगे लड़कियों के। लाइक रिलेशनशिप्स तो रही होंगी पहले ही भी। ऐसा था लाइक आई वाज वेरी, मतलब अगर मैं अपनी पार्शियलिटी के बारे में बात करूं तो आई वाज वेरी मतलब अब्यूसिव फ्रेंड शायद मैं, मतलब काफी ज्यादा गलत कामों में भी इन्वॉल्व रहता था। क्लास 7 तक मेरे साथ ऐसा सीन था कि मतलब मैं क्लास 7 में कली कितनी होती है एक बच्चे? क्लास 7 नहीं, मेरे साथ बेसिकली ऐसा सीन था कि मेरा वो ग्रुप सर्कल ही ऐसा था कि आई वाज बेसिकली इन्वॉल्वड इन सो मच, मतलब गाड़ी देना, लड़ाई मतलब बहुत ही मतलब एक बुरा टाइप का माइंडसेट था मेरा। सो आई अल्टीमेटली मेड अ ट्रांजिशन इन क्लास 9th कि मैंने वो सब सारे मतलब वो सब काम छोड़ दिए, सारे कुछ मतलब जितने गलत काम थे ये सब, मतलब गाड़ी देना, गाड़ी देना। आई एम नॉट सेइंग रिलेशनशिप इज अ गलत काम, रिलेशनशिप इज अ वेरी सही काम। यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर अ परफेक्ट पार्टनर। सो अगर परफेक्ट पार्टनर अगर तुम्हें अगर मिल जाता है, सो डेफिनेटली यू आर वेरी लकी। सो टॉपिक पे मैं सो गलत सीन है, अगर किसी को आपको अप्रोच करना हो रिलेशनशिप के लिए तो अप्रोच करे कि नहीं? नहीं। अच्छा, मतलब करेंटली यू आर रिजर्व्ड। ओके, दैट्स वंडरफुल। अच्छा हर्षल, आजकल की जनरेशन क्या है कि मतलब 12th तक की पहले तो बच्चे सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब जो भी जितने को भी मैं जानता हूँ, यू वर द मोस्ट यूनिक पर्सन दैट आई एवर नो, ठीक है? 12th तक तो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते हैं तो दे आर डिफरेंट, दे आर अ वेरी डिफरेंट फील्ड्स कि हाँ यार मैं क्या करूँ, मैं ये सीखूं, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, तो हाउ डू यू यूटिलाइज दीज अपॉर्चुनिटीज, राइट? कि मतलब लिंक्डइन से आप बताओ कि लिंक्डइन कितनी पावरफुल चीज है और इंस्टाग्राम कितनी पावरफुल चीज है। अगर किसी को खुद का अगर मान लो किसी को खुद का सपना है तो कैसे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से उस चीज को, सपने को साकार कर सकता है? मतलब हाउ डू यू यूज दीज प्लेटफॉर्म्स? आई सी यू यूज अ लॉट ऑफ लिंक्डइन पोस्ट, लाइक यू यूज लिंक्डइन वेरी सक्सेसफुली, लाइक हाउ डू यू मैनेज टू यूज इट? ओके, सो लिंक्डइन पे मैंने कुछ मतलब समथिंग लाइक कि अभी पिछले 1 महीने से मतलब कंटिन्यूअसली मैं वहाँ पे हाइवेल पोस्ट वगैरह ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिंक्डइन यूज करता हूँ बहुत पहले ही से, मतलब मैं ज्यादा मतलब लोगों पोस्ट वगैरह वहाँ पे ड्रॉप नहीं करता, पर यूजुअली मैंने अपना जो भी नेटवर्क वगैरह बिल्ड किया वो काफी ज्यादा मैंने लिंक्डइन से किया है। इंस्टाग्राम से भी एक्चुअली क्या था ना कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि यूजुअली फोकसिंग ओवर ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम होगी। मेरे साथ क्या हुआ कि लाइक व्हेन आई वाज बैक इन क्लास 9th है, मतलब क्लास 9th में मैंने बोला कि मैंने जब माइंड से ट्रांजिशन लिया तो उस समय मैंने क्या किया था कि मेरे जितने भी टॉक्सिक फ्रेंड्स थे, अगर टॉक्सिक पीपल बोल सकते हैं, उनको मैंने अनफ्रेंड कर दिया फेसबुक से। एंड आई रिमेंबर उस समय मेरे पास 120 फ्रेंड्स के आसपास बचे थे। सो दिस वाज अ थिंग, मतलब आप आई रिकमेंड कि मतलब आप सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप टॉक्सिक सराउंडिंग से खुद को कट करो, इवन इफ दे आर फ्रेंड्स, इवन इफ आपकी कंपनी डिसाइड करती है आप कौन बन रहे हो। सो उसके बाद आपके पास आता है कि हाउ यू आर गोना यूटिलाइज योर टाइम। एक बार आप सराउंडिंग से कट कर लेते हो, एक बार पॉजिटिव सराउंडिंग के बीच अगर आप जब रहने लगते हो तो खुद आपको चीजें पता चलती जाएंगी कि व्हाट दे आर डूइंग। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर रहते हो, लाइक whoever have been like doing great in their life, तो आपको खुद पता चलता जाएगा कि व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ।
how you should implement what they are doing. तो उसके बाद ही like मेरे को पता चला कि like I should be starting building my network. मैं networking काफी पहले से 9th class से start किया था. So I started with Facebook. Facebook में मतलब I was basically that time I was basically into robotics and drones. तो मैं start किया फिर robotics वगैरह वाले जो लोग काम करते हैं उस डोमेन में उस ग्रुप्स वगैरह मैंने कुछ में ज्वाइन किया बहुत सारी. So that's all कि मतलब मैंने अपना एक सर्कल बनाया, अपना एक वर्चुअल सराउंडिंग बनाया जिनके बीच में विश्व को अपना बहुत टाइम स्पेंड करता था. So coming on to the point कि अगर मेरे को LinkedIn बहुत बाद में जाके पता चला कि LinkedIn ऐसी भी कोई चीज, so they should be the people who should be मतलब willing to help you in your bad times. So that's great. That's great, Harshil. That's great how you went through your journey. That's great. हर्षिल, मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि मतलब हम दोनों भी LinkedIn से ही मिले थे. Exactly. मैंने हर्षिल को मैसेज किया था, तो that's how his interview is happening. So this was your journey. तो हर्षिल, what was the motivation behind your journey? Like what keeps you going? अभी भी मतलब इतना क्वारंटीन के टाइम में what keeps you going? सारा दिन मतलब ये आलसपन, मतलब हमारे तो मेरे मतलब मैं करेंटली अपनी बात करता हूँ कि मेरे में क्या है कि बहुत आलसपन है कि मैं दिन में सोए रहूंगा, मतलब रात को फिर मैं एक्टिव हो जाता हूँ. रात को आई एम अ नॉकटर्नल एनिमल, तो मैं रात को जाग जाता हूँ. So how do you keep yourself going? Like what is the motivation behind it? See, it's for me it was always learning was something which gave me happiness. So मतलब robotics में मतलब ऐसा कुछ मेरा intention था नहीं कि मेरे को इससे मतलब कुछ करना है या फिर बड़ा करना है कि I was building robots and doing small मतलब मेरे को भी बड़ा ऐसा मेरा कभी भी motive था नहीं. I was just doing those. I was participating in robotics event, then doing what's about it and forest festival and I usually participate करते रहता था. Mainly because that gave me a sense of happiness. मतलब मैं स्कूल वगैरह में जाने पसंद था नहीं. But I was basically academics में खराब नहीं थे, but basically मतलब होती है ना मेरे को पढ़ाई से खुशी मिलती नहीं. So मतलब it started actually giving me happiness. मेरे को करने में मजा आता था. So today also मतलब it's only that like if you're doing something where you're passionate about, तो ऐसा कभी भी वो motivation is a very high thing. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि motivation की और कोई समझ आएगा तो push करे कि नहीं वाला काम करो. If you will be motivated, mostly क्या होता है ना, generally आप अपने सारा founders वगैरह से मिलोगे जो मतलब genuine सारा founders में कोई issue से motivated होते हैं उनको आप देखो because they are always working towards something मतलब which they're passionate about. They are passionate about. Now we have seen your journey. आपने कैसे आप इतने मतलब अच्छे वो बने, इतने बड़े आदमी बने, मतलब क्या क्या आपकी जर्नी थी, हमने सब कुछ देखा. तो we'll sum up to like औधे में कैसे बड़े आदमी बने. तो we'll sum up the video right here. तो व्हाट आर द की टेकअवेज जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो लोग और जो पीयर्स हैं हमारे जो हमारे साथ काम करते हैं, मतलब कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं और वो कैसे मतलब सेम जर्नी को मतलब सिमिलर टाइप ऑफ जर्नी को फॉलो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं. तो व्हाट आर द की टेकअवेज दैट यू वांट टू गिव? Okay, so there would be a bunch of key takeaways from this video. So, मतलब the very first thing that I would recommend out to teenagers or even the college guys, मतलब the very first thing that you should be doing is start networking. It's the very first thing that I tell to everyone. मतलब you should start building your network from a very early age. The moment that you realize कि मतलब networking comes up, like I'm not gonna like boast about like what are the benefits of networking. अच्छा हर्षिल, एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा. यहाँ पे हर्षिल का नेटवर्किंग से मतलब ये है कि आप जितने लोगों को जानते हो उनको एक्सपैंड करो, नए लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनसे एक अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो. ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में. तो नेटवर्किंग से हर्षिल का मतलब ये है. तो एक तो ये की टेक जो हर्षिल ने बोला दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग करो. और लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग. लाइक लिंक्डइन एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है जहाँ पे जाके आप वो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो लाइक माइंडेड पीपल से. सो जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट मेक योर फर्स्ट मूव. डरो मत, प्लीज मेक योर फर्स्ट मूव. That's the key takeaway from this video कि जो आपको करना है प्लीज कर लो. And this is the best time that you are getting this quarantine period. And we college are off, सब कुछ off. This is the best time that you are getting. So just take the move. जो करना है प्लीज कर लो. बाद में कोई there is no perfect timing for everything. So what do you feel sir कि this is the perfect timing, like ये तो best time है हम सबके लिए. Definitely. Like you're just having so much of free time. You should be like started. The another key takeaway that I would like to add in this video is you should focus on building a core skill.
start building your core skill from the very right moment. From now, start building your core skill. You should start focusing on solving problem. That don't start with Android application development. कि मतलब मेरे को सीखना है because like that's a very high topic in the industry. No, don't focus over that. You should be goal oriented, and that's मैंने आज LinkedIn पे इसी से related एक post drop किया था. You should be goal oriented. अगर कुछ भी नया skill सीख रहे हो तो focus on solving problems. Maybe like if you want to build an application for that nearby kirana store because उनको sales नहीं मिलते हैं, तो you're just focusing on making the business online. So that's what you should be like focusing the very next post that I would like to add. You should start focusing on building your core skills from right now. So these were the key takeaways from this video. Thanks a lot, Harshil. और हर्षिल की प्रोफाइल का लिंक you will find in the description. You can go and drop him a message and ask your queries from him. Thanks a lot, Harshil. Thanks a lot. और मेरी प्रोफाइल का लिंक भी LinkedIn में डिस्क्रिप्शन में होगा. तो thanks a lot for watching this video. Thanks a lot. Thanks a lot, Harshil. Thank you, Parag. Thanks a lot. Okay, bye.